पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is Dash district of Punjab has the lowest dash as per 2011 census। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਾਨਸਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਿਟਰੇਸੀ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ that is lowest। ਸੋ ਲੋਐਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय द ਏਰੀਆ ਆਫ द डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन का मतलब की होया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जे आपां देखिए तो सब तो घट जिहड़ी पॉपुलेशन दे हिसाब नाल देखिए तो बरनाला डिस्ट्रिक्ट पैंदा जिहदी कि पॉपुलेशन सब तो घट पैंदी है 5,95,000 के करीब एज पर 2011 का सेंसस। पर ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ that means ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 348 ਪਰਸਨਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 348 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 978 ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ आबादी भी लुधियाने की सब तो ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी सब तो ज्यादा है। और आप होर देखते हैं कि जिन्हों की आबादी डेंसिटी घट हैगी है ठीक है जी मानसा की 350 हैगी है और जो मैं तुहानू दस्सिया सी कि मुकतसर की जिहड़ी हैगी है दैट इज ओह 348 है। सो दैट मीनस कि साडा जवाब किहड़ा बनिया ओह मुकतसर बनिया। और तुसीं जे आबादी देखदे हो इत्थे किते इह बरनाला की जिहड़ी आबादी हैगी है तुहाडे कोल इत्थे इह मानसा की आबादी है 7 लाख कोई 69,000 के करीब और मुकतसर की आबादी है कोई 9 लाख के करीब। पर एरिया इहदा ज़्यादा हैगा इस करके एरिया ज़्यादा होने करके जिहड़ा सीगा इहदी पॉपुलेशन डेंसिटी हैगी है वो घट बनती है। और बरनाला तुसीं देखो इत्थे बरनाला कित्थे पै गया जी अपने कोल बरनाला इहदे विच पूरा नहीं आया अपने कोल इत्थे बरनाला पूरा नहीं नजर आ रहा अपने को इत्थे। सो बरनाले की जिहड़ी पॉपुलेशन हैगी है मैं तुहानू दस्सिया सीगा वो 5,95,000 है। सो इस करके साडा जवाब किहड़ा बनेगा है मुकतसर पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखो हुण तुसीं अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। उस क्वेश्चन दे विच साडे कोल की आंदा हुण इह कि आपां नूं इह तां पता है कि रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट होया सीगा और असीं इह भी जानते हैं कि रेडक्लिफ मिशन ने पंजाब की वंड जिहड़ी सीगी वो डिमार्केशन जिहड़ी कीती सी वो रेडक्लिफ लाइन बनाई सीगी। सो पर असीं इह भी पता होना चाहिए कि इहदे विच मैंबर कौन कौन सीगे। सो जदों तुसीं इस चीज़ नूं थोड़ा ध्यान दे नाल पढ़दे हो तां तुहानूं पता लगदा है कि दो बाउंड्री कमीशन बने सीगे एक तां बनिया सीगा ईस्ट पाकिस्तान वास्ते ठीक है जी और दूजा जिहड़ा बनिया सीगा साडा ओह पंजाब बाउंड्री बंगाल बाउंड्री कमीशन बनिया सीगा और एक बनिया सी पंजाब बाउंड्री कमीशन बनिया सीगा। सो जिहड़ा पंजाब बाउंड्री कमीशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ अब ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ पंजाब बाउंड्री कमीशन ठीक है जी क्योंकि साडी ਜਿਹੜੀ हिस्टरी हैगी है ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ और दोनों कमिश्नर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ और दो ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਐਂਡ ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ। उज्जवल सिंह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਐਂਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1966 ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? that was on the basis of justice JC Shah commission। so that means ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ these were the two persons ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਹ ਹੈਗੀ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਮੁਹੰਮਦ जस्टिस मुनीर दीन मोहम्मद एंड मोहम्मद मुनीर, सॉरी दीन मोहम्मद एंड जस्टिस मुनीर, ठीक है जी। सो ये दो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव सीगे। सो साडा जवाब ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। The elections to Punjab Legislative Council were held for the first time in the year dash under dash reforms, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੈਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਈਆਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਈਆਰਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਈਆਰਕੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੌਂਟੈਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ 1920 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਮੌਂਟੈਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੌਂਟੈਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬਜਟ 2023 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ 12,333, 9,331, 5,831, 3,318 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 9,331 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ to provide free electricity to the farmers. During which Udasi did Guru Nanak is mentioned as wearing blue robes? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਕੂਜਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਤਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂ ਰੋਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਕਦੋਂ ਧਾਰੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜਵਾਬ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਕੁਜਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਤਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। Which of the following schemes aim to provide loan and subsidy to poor and scheduled caste population? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ that is PSC ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, that is ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਡੈਸ਼ ਐਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚੇਗਾ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ A and C। ਹੁਣ 1601 ਕੇ 1604, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦ ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾय, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਤ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੇਮ
उस चीज के बहुत माहर बन गए एंड ही लेफ्ट ए बिग इंप्रेशन और सर आर्थर मैकॉल्फ, ठीक है, उन्होंने ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਕॉल्फ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 6 ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ which one of the following is not an ornament used by ਪੰਜਾਬੀ men, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਪੇਸ਼, ਸਰਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਕਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਕੜੂ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ornament ਹੈ, ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਕੜੂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਖਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐ ਚੌੜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੌਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੌਂਗ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਲੌਂਗ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਕਿ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਲੌਂਗ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। Who of the following was not a member of Ghadar party? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਗਦਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 1913-14 ਚ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1907 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਗਦਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? Who of the following met ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ at ਸ੍ਰੀਨਗਰ? ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਲਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੜਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ
अपने कर्म की रक्षा वास्ते और अपनी सुरक्षा वास्ते रखी हुई है। Fertility of soil in Kandy area is कंडी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ soil ਦੀ fertility किस तरीके ਦੀ ਹੋਏਗੀ? fertility ਦਾ मतलब कि फसल ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਈ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Which of the writers and his work have been not wrongly paired? ਇੱਥੇ once again not wrongly paired। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। that means ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ wrong ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪਿਲੂਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਸੀ ਪੰਨੂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸੀ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਸੀ ਪੰਨੂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸੀ ਪੰਨੂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਲੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ डिटेल दी हुई है। ससी पुन्नू इज बाय हाशिम शाह, ही आल्सो रोट सोनी महीवाल ते श्री फरिहाद। ठीक है जी। किस्सा पूर्ण भगत ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਅ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਆਫ ਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। अगला क्वेश्चन क्या आंदा है? sluggish growth in agriculture sector in Punjab is due to पंजाब दी ਜਿਹੜੀ एग्रीकल्चर च growth हैगी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ पंजाब ਦੀ उपज बहुत ज़्यादा और ਇਹਦੀ फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, पर growth बड़ी घट हो रही है। growth ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ मध्य प्रदेश ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 129 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਸੀਲੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਏਕੜ ਇਹ ਪੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗਰੋਥ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਲਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਗਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। The novel Dash written by Amrita Pritam was published first in the year dash dash dash। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਜਰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। Who was the founder of Ahluwalia Misl and he was conferred the title? ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਨਵਾਬ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਨਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਰਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। चलिए 48 मॉक टेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स देखते हैं। ठीक है, अपने स्कोर को टैली कीजिए कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सडन चेंज इन द जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। कहता है वो जीन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, आपको सडन चेंज मतलब आपका चेंज हो क्या है। ठीक है, मतलब दो जीन्स थे उसमें एक और जीन आपको दूसरा दिखाई दे रहा है तो उसको म्यूटेशन कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट जनरली माना जाता है जिनको जिनकी म्यूटेशन हो जाती है, दे आर इधर वेरी इंटेलिजेंट, और या जिनकी म्यूटेशन हो जाती है उनको कोई ना कोई फिर पर्सनल यानी फिजिकल डिसएबिलिटी के होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनमें से सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, आपने बचपन में शायद कभी ना कभी इसकी क्लास लगाई हो, तो एबेकस। ठीक है, एबेकस वाज द फर्स्ट वन। Who among the following considered as the father of artificial intelligence। इनमें से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के तौर पर देखे जाते हैं, जनक के तौर पर देखे जाते हैं, तो आंसर क्या है आपके पास, जॉन मैककार्थी। ठीक है, जॉन मैककार्थी। हनी स्वीटर देन केन शुगर और कॉर्न सिरप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो कहता है हनी सबसे ज्यादा स्वीट होता है। ठीक है, केन शुगर और कॉर्न सिरप के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें ऐसा कौन सा कार्बन शुगर अवेलेबल है जिसमें इसकी वजह से इतना मीठा होता है, तो आंसर क्या है आपका, ल्यूवोलॉस। ठीक है जी।
The Union Minister of Road Transport and Bharat Highways introduced Bharat Series BH for vehicle for what purpose? आपने अभी सुना होगा भारत सीरीज 6 निकली हुई है, तो वो आपको पूछ रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों निकाला गया इसका, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। अगर BS6 है तो आपके स्टेट के अंदर जो व्हीकल्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। RBI increased the limit of fund transfer under the Indo-Nepal Remittance Facility Scheme from dash to per transaction from 50,000 at present। तो पहले ये लिमिट नेपाल में पैसे भेजने की 50,000 थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपए कर दिया गया है। JB Mohapatra, a senior Indian Revenue Services Income Tax Officer, has been appointed as the chairman of which apex organization? ठीक है, किस जगह पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है? तो अपॉइंटमेंट आपकी कहाँ हुई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज CBDT। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज मेड एन एलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR राइट्स 12.57 बिलियन टू इंडिया, हु रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IMF। आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए गए हैं तकरीबन $12.5 बिलियन के। तो क्वेश्चन ये है कि IMF के बोर्ड्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो इट्स द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। In which sports in the Tokyo Paralympic 2 Indian won the gold medal in the same event? तो आंसर आपका क्या है? बैडमिंटन के अंदर ये हुआ था, ठीक है। मिस हर्षा भूपेंद्र भांगेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो ये आपके पास एक्सिम बैंक, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वहां पे आपको इनको हायर किया गया। Which country started the world's largest plant designed to suck carbon dioxide of the air and turn it into a solid rock? ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सक करेगी और इसको सॉलिड रॉक में कन्वर्ट करेगी। तो आंसर आपके पास क्या है? ये आइसलैंड ने किया है, ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा, रिटायर्ड IPS ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द विच नेशनल एपेक्स बॉडी? तो ये आपके पास नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के क्या चुने गए? हेड चुने गए। Under which article of the Indian Constitution Hindi in Devanagari script was adopted as India's official language? तो ये आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा है? 343। Which IIT launched Project Udan, a software ecosystem that translates scientific and technical content from English to Hindi and several other languages? तो ट्रांसलेटर के तौर पर है उड़ान, जिसको IIT बॉम्बे ने बनाया है, ठीक है। When is the International Day for Elimination of Racial Discrimination is observed? तो ये होता है आपका 21 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। Which state secured first position in installation of off-grid solar pumps under the प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान? तो ये PM कुसुम के नाम से जानी जाती है स्कीम। तो ये आपके लॉन्च की गई थी बाय द हरियाणा, ठीक है। PM कुसुम इसमें रैंक फर्स्ट रहा है आपके हरियाणा का PM कुसुम योजना में। Who among the following was the first Indian women president to chair the Indian National Congress at Kanpur session of 1925? तो it was सरोजनी नायडू। अगर आपसे जनरली पूछा कि फर्स्ट इंडियन ही कौन थी, तो आंसर एनी बेसेंट हो जाता है, ठीक है। Which British officer surpassed revolt of 1857 in Banaras and Allahabad? तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस ब्रिटिश ऑफिसर ने बनारस और इलाहाबाद को का जो युद्ध है उसको दबाया था? तो इट वाज कर्नल नील। In a child of 3 to 4 year milk teeth do not include, जो 3 से 4 साल का बच्चा होता है उसके दूध के दांत होते हैं, उसके पास क्या नहीं होते हैं? मोलर्स नहीं होते हैं उसके पास, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच हैज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपके पास कहां पर है? इट्स इन वेस्ट बंगाल। Who among the following was not one of the founding fathers of All India Muslim League? इनमें से कौन मुस्लिम लीग के फाउंडर्स में से एक नहीं है? तो इट्स वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। बल्कि इसके अंगेज थे वो। 9th edition of India Kyrgyzstan Joint Special Force Exercise Khanjar 2022 was held from 25 to 6 April। ये आपके पास कहां पर हुई है? It happened at the Baklo, that is in Himachal। The World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank granted a loan of 7,500 crore for the mission School of Excellence project of which state? तो ये आपको दिया गया है, गुजरात को दिया गया। 7500 करोड़ का लोन है ये, ठीक है। The Airport Authority of India has launched an initiative Avsar to encourage and support the talent of dash women artisan craftsmen and provide them for the right opportunity।
तो ये सबके लिए, विमेंस के लिए है, आर्टिस्टियंस के लिए है, क्राफ्टमैन के लिए, सबके लिए है, ठीक है, ऑल ऑफ देम। Which central government scheme aims to increase the skill level of around 2.71 lakh targeted youth over the next 5 years by providing them free training for long term and short term scheme? तो स्कीम का नाम आपके पास क्या है? दक्ष, ये स्कीम का नाम है। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव। तो एक बार अपना स्कोर टोटल कीजिए कि कितने आपके स्कोर बने हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूं उसी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? आपको ये बताना है कि पहला बूट सेक्टर वायरस जो है वो कौन सा है। सबसे पहले आपको ये बताना है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस जो है वो आपके पास कौन सा है। ब्रेन है, माइंड है, एल क्लोनर है या फिर न्यूमैन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट वायरस की, तो वो है आपके पास यहाँ पे ब्रेन। खास तौर पे यहाँ पे क्या दिया गया है, बूट सेक्टर पूछा गया है। तो बूट सेक्टर का आंसर क्या होता है? ब्रेन जो था पहला बूट सेक्टर वायरस था। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड। अब नंबर ऑफ फंक्शन कीज जो होती है वो कितनी होती है? 14, 12, 13 और 15। तो आपको मालूम है कि F1 से लेके F12 तक आपके पास टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। टोटल कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होती है। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की डू यू प्रेस टू चेक द स्पेलिंग? अगर स्पेलिंग को चेक करना है तो कौन सी आप लोग यहाँ पे करते हैं? तो आपको आंसर करना पड़ेगा F3, F5, F9। तो यहाँ पे आंसर आएगा F7। F7 जो होता है, F5 जो होता है वो रिफ्रेश के लिए होती है। तो आंसर इसका बनेगा सी ऑप्शन, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation without having the spend too much time on it? आपके पास सिंपल प्रेजेंटेशन की बात हुई है तो आपके पास ऑटो कंटेंट विजर्ड, एनिमेशन, कलर स्कीमा या फिर चार्ट विजर्ड। चार्ट विजर्ड में तो चार्ट मिलते हैं, कलर स्कीमा में तो कलर मिलेंगे, एनिमेशन में तो ऑब्वियस हैवी हो जाएगा। अब ऑटो कंटेंट विजर्ड में जो ऑलरेडी बनाया पड़ा है वो मिल जाएगा। तो यही तो पूछा था इसने, यही तो पूछा था आप लोगों से कि आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्या है आपके पास? फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रो एंड कॉलम। देखो जब भी रो एंड कॉलम आपको ये दोनों वर्ड मिल जाता है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? स्प्रेडशीट की, MS एक्सेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन शीट, रजिस्टर्स, बिजनेस फॉर्म या फिर स्प्रेडशीट। आंसर क्या बनेगा? स्प्रेडशीट। मतलब MS एक्सेल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर पावर पॉइंट में आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+S, ये तो सेव के लिए होता है, ये तो सेव के लिए होता है। V ये तो पेस्ट के लिए होता है। C कॉपी के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? Ctrl+P। मेरे को लगता है बहुत आसान था, ये आपको सभी को आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू अ वेबसाइट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम वेबसाइट देखते हैं। ब्राउजर, वेब सर्वर, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर तो MS वर्ड होता है, ये तो होगा नहीं। स्प्रेडशीट MS एक्सेल होता है। वेब सर्वर हैंडलिंग का काम करता है। तो बचा क्या? वेब ब्राउजर ही तो बचा। ब्राउजर के थ्रू आप लोग सारे के सारे काम करते हैं। गूगल है, क्रोम है, सफारी है, सॉरी गूगल गलत बोल दिया, वो सर्च इंजन था। आपके पास क्रोम है, सफारी है, ठीक है ना, वो है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय द पेन और पेंसिल। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो होता है वो OMR शीट को भरने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? OMR। ठीक है, अब लगे हाथ यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर तो यही है, सी ऑप्शन। पर इसके फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, BCR बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड MICR
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो ऑब्लिक में रीडर होगा। दोनों दिए जा सकते हैं, रीडर और रिकॉग्नाइजेशन में पहले यू हैव टू ऑलवेज क्लिक रिकॉग्नाइजेशन, अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं है देन यू हैव टू पिक रीडर, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट लेजिटिमेट चैनल, इनमें से कौन सा जो है प्रमाणित चैनल नहीं है, लेजिटिमेट मतलब जिसकी वैधता नहीं है। सिंप्लेक्स बिल्कुल मेथड होता है आपके पास ट्रांसमिशन मेथड, हाफ डुप्लेक्स बिल्कुल होता है, फुल डुप्लेक्स ये भी होता है, पर डबल डुप्लेक्स कुछ नहीं होता भैया, ये आज तक कोई नाम नहीं है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, इसके पास सेंडर होता है और रिसीवर होता है, सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, ये होता है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे भी सेंडर होता है, रिसीवर होता है, पर पहले सेंडर सेंड कर सकता है तो रिसीवर क्या होगा, सुनेगा। ठीक है, बाद में रिसीवर सेंडर बन जाता है तो यहाँ पे डेटा को सेंड कर सकता है, तो इसका आंसर ये रहेगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियसली सुनते हैं, तो ये भी तो होता है, तो इसका मतलब ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट हुआ, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञान हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं और आज हम फिर से इस वीकली मॉक के रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हाउ विल यू कोड अकोमोडेट इफ S एंड V इज कोड ऑन 8 and 5, मतलब बोला है कि S का कोड आपके पास ये है और आपको V का कोड ये है, S का कोड 8 है, H का कोड आपके पास V है। देखो बेटा, सबसे एक बड़ी बात यहाँ पे ये समझो कि अगर S का कोड, S की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो 19, इसके V की बात करता हूँ 22, तो साफ तौर पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि लेटर का अपोजिट सम है, लेटर का अपोजिट सम यहाँ पे बन रहा है। तो A का अपोजिट सम क्या बना, 26। ठीक है, तो मैं अगर एलिमिनेट करता हूँ तो सबसे पहले B ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर आगे से भी मैंने आपको सिखाया कि स्टार्टिंग से ना करें, आखिर से कर लिया करो। इसका क्या है 5, तो 5 में कितने ऐड करूँ, 22, ये ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर बनेगा। अगला कर लेते हैं, इसका 20 होता है तो 20 में कितने ऐड करेंगे, 7, तो 27 बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज बी ऑप्शन। डायरेक्टली एलिमिनेट करिए क्योंकि लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर था, यहाँ पर लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर बन रहा था, तो बजाय कि पूरा करने के हमने एलिमिनेशन लगाया, जो कि हमारे लिए आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फिर से वैल्यू पुट करेंगे, D E F H I J M N O, वैल्यू डालते हैं। D की वैल्यू 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 13 है, 14 है और 15 है। ठीक है, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या मिसिंग है बेटा, 7 मिसिंग है। 8, 9, 10, यहाँ पे क्या है 11 और 12 मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिसिंग है। आगे 3 नंबर होंगे तो आपके पास 16, 17 और 18, तो 19, 20 और 21। एस टी यू ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ रैट रन 20 फीट टूवर्ड ईस्ट, मतलब रैट यहाँ पे था, 20 फीट जो है ईस्ट की तरफ गया। देन आगे आपके पास है टर्न राइट एंड रन 10, राइट लिया और 10 यहाँ से चला, एंड अगेन टर्न टू राइट एंड 9, यहाँ से राइट लेंगे, 9 यहाँ तक आएगा। देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक रन, लेफ्ट लिया, यहाँ से 5 आ गया, एंड टर्न टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले लो यार, लेफ्ट में कितना लिया है 12 फीट, लीजिए 12। उसके आगे टर्न लेफ्ट एंड गो 6 मीटर, लो जी 6 आपके तरफ गया। विच डायरेक्शन द रैट इज फेसिंग, रैट अब कौन सी डायरेक्शन ऊपर फेस कर रहा है, नॉर्थ साइड फेस कर रहा है। आंसर इज नॉर्थन साइड। होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रैंकिंग से लिया गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे पास फेल की बात हुई है। अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड सेजल
अब पहले मैं इसे ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास क्या बोला है। अमीशा इज 22 फ्रॉम द टॉप, टॉप का मैंने ले लिया लेफ्ट। अमीशा जो है लेफ्ट साइड से आपके पास 22 है, ठीक है। एंड सेजल हु इज 5th रैंक बिलो ऑफ अमीशा इज 30 फ्रॉम द बॉटम। तो मतलब आपके पास सेजल जो कि नीचे से 34 थी और इससे 5 रैंक इस तरफ थी, तो 22 5 27। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका रैंक आपके पास ये जो गिवन था वो राइट साइड से गिवन था और ये जो था वो लेफ्ट साइड से गिवन था। तो इसी का ही सेजल का रैंक फिर से आपके पास गिवन था 27 फ्रॉम द लेफ्ट। कैसे गिवन था? क्योंकि उसने कहा था कि सेजल जो है अमीशा के 5 रैंक नीचे बैठी हुई है, तो पीछे मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आपको पहले तो टोटल निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर इसको लेफ्ट और इसको राइट ले लीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल निकालना था, आपके पास यहाँ पे है 27 और यहाँ पे 34 -1, तो कितना आ गया? टोटल इज इक्वल टू 60। टोटल कितना आ गया? 60। पहले इतनी बात तो आपको क्लियर है। आगे क्या है? ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, सारे के सारे बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड द एग्जाम टू दोस हु फेल इट टू 4:1, पास और फेल का रेशियो, पास और फेल का रेशियो 4:1 का गिवन किया गया है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। अब आपके पास यहाँ पे पास का निकालना है, तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल कितने हैं? 5 यूनिट हैं और निकालना किसका है? 4 का, तो x। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कहना इसे 60 इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स। तो अगर इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे कि 60 इंटू में आपके पास 5/4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हाँ, तो अब आपके पास इसे काट देंगे आप लोग, तो कितना बन जाएगा? अगर इसे काटते हैं 4 से तो कितने पे गया? 4 से काटा 2 और यहाँ पे कितना आया? 30। और अगर इसे यहाँ पे काटते कितना आया? 15। तो 15 पंजे 75, 75 आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 75 टोटल आपके पास क्या थे? बच्चे थे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है? पॉइंटिंग टू रविंदर, रीना से, स्पीकर मिल गई है, रीना मिल गई है। रीना क्या बोलती है? रीना सेज, लीजिए, रीना सेज, रीना ने क्या कहा कि ही कौन है? रविंदर, कि रविंदर इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। रविंदर जो है सन है माई मदर की ब्रदर, मेरे मामा की वाइफ, मतलब मेरी मामी का बेटा कौन है? रविंदर। अब पूछा क्या है? हाउ इज रीना रिलेटेड टू, तो रीना इसके क्या लगी? कजन, ठीक है, कजन लगी। सिस्टर नहीं बोलेंगे, कजन बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन जो है पजल का है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। PQRSTVWNZ आर ट्रैवलिंग टू 3 डेस्टिनेशन, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। मैं मार्क कर लेता हूँ, दिल्ली है, चेन्नई है एंड हैदराबाद है। इन द 3 डिफरेंट व्हीकल, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर एंड फोर्ड आइकन। देयर आर 3 फीमेल, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 3 फीमेल हैं अमंग them 1 in each car, there are at least 2 person in each car। अब ये भी गिवन है। अब बेटा 3 कारें थी, लो जी, पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार, ठीक है। और तीनों दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में से हैं, और होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड आइकन है, और हर एक में एक फीमेल है, ठीक है, ये आपके पास। और कम से कम हर गाड़ी में 2 बंदे रहेंगे। सबसे पहले क्या बोला? देयर आर एट लीस्ट 2 person इन ईच कार। आर इज नॉट ट्रैवलिंग विद क्यू एंड डब्ल्यू, मतलब आर अगर इस कार में अगर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे कभी भी क्यू और डब्ल्यू ट्रैवल नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। देन आगे क्या है? टी अ मेल इज ट्रैवलिंग ओनली विद जेड। टी जो कि मेल है, ओनली ट्रैवलिंग विद जेड, अगर ओनली जेड है तो ये फीमेल ही होगा, ठीक है ना। मतलब आपको कंफर्म टी जो है केवल जेड के साथ है, तो टी खुद मेल है तो दूसरी फीमेल ही होगी। एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेन्नई, और चेन्नई यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। काट दो। आगे आपके पास क्या है? पी इज ट्रेवलिंग टू होंडा सिटी, पी जो है होंडा सिटी, और आपके पास टू हैदराबाद, मतलब एक जगह आपको मिल गई। आगे है एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस क्या है? सिस्टर है किसकी? पी की।
एंड ट्रेवल बाई फोर्ड आइकन, और गाड़ी क्या है, फोर्ड आइकन, फोर्ड आइकन। लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। वी एंड आर ट्रेवल टुगेदर, वी और आर ट्रेवल टुगेदर, लो जी यहाँ पे आ गया। अब आगे आपके पास है W इज नॉट गोइंग टू चेन्नई। तो अब पहले तो ये देखो कि क्या हुआ, W के लिए तो जगह ये बची है, चेन्नई यहाँ पे भी नहीं आएगा इसने कहा। अगर चेन्नई यहाँ पे भी नहीं आएगा तो चेन्नई यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि P जो था होंडा सिटी में था तो इस कार में बिठा नहीं सकते, तो P आपका इस कार में आएगा जो कि आपके पास गाड़ी है होंडा सिटी, और आपके पास डेस्टिनेशन क्या है, हैदराबाद। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ S फोर्ड आइकन में है तो S अपने आप में क्या थी, फीमेल थी, तो R आपके पास मेल आ गया, V आपके पास मेल आ गया, और इसकी गाड़ी कौन सी थी, फोर्ड आइकन। बेटा ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले कहा था यहाँ पे कोई और बंदा नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब गाड़ी आपके पास कौन सी बची हुई है, स्विफ्ट डिजायर। और डेस्टिनेशन एक ही बची हुई है, डेस्टिनेशन क्या बची हुई है, दिल्ली, लीजिए ये आपके पास हो गया। तो ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे थी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंबर इन द विच कार ट्रेवलिंग इनटू चेन्नई, चेन्नई में ट्रैवल करने वाले कौन कौन से हैं। तो चेन्नई जो है एस, ऐसा एक चीज़ और देख लो, P, W और Q का जेंडर नहीं पता चला है मेरे को अभी तक यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जेंडर नहीं पता चला था, T था मेल, P इज ट्रैवलिंग इन होंडा सिटी इन हैदराबाद, कुछ पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन था कि आपके पास चेन्नई में कौन है, तो चेन्नई में फोर्ड आइकन SRV, अच्छा फोर्ड आइकन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इन विच कार 4 मेंबर ट्रैवलिंग, 4 मेंबर तो आपके पास किसी में भी नहीं थे, 2 और 3 ही हैं। ठीक है, चलिए आप चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ पे कि 4 मेंबर किसी में भी नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द 3 फीमेल मेंबर। तो एक तो मेरे पास ऐसा भी है, अगर मैं बात करता हूँ आखिरी में आपको जेंडर का पता ही नहीं चल पाया था, तो इसका आंसर सीधा क्या दे दिया जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम आंसर ही नहीं निकाल पाए थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में क्या है, सिलोजिज्म से है, ऑल पेन आर ग्रासहोपर, सम ग्रासहोपर आर क्लाउड एंड सम क्लाउड आर बॉटल। ठीक है, एंड सम बॉटल आर ग्रासहोपर, गलत। सम क्लाउड आर पेन, सम क्लाउड आर पेन, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। नो पेन इज क्लाउड, पूरे के पूरे पेन क्लाउड नहीं है, रिलेशन नहीं है, गलत। ऑल पेन आर बोतल, ऑल पेन आर बोतल, गलत। देखो बेटा चारों के चारों यहाँ पे सारे गलत हो गए क्योंकि कोई रिलेशन नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दें। अब यहाँ पे आइदर की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, तो आइदर चेक करना पड़ेगा, तो आइदर बाई ऑप्शन से चेक होगा। एक तो लिखा है डी में और एक लिखा है बी में। तो क्या लिखा है डी में, ओनली आइदर 2 और 3 फॉलो, 2 और 3। 2 में क्या है, सम क्लाउड आर पेन, 3 में क्या है, नो पेन आर क्लाउड। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। वेरिएबल नेम क्लाउड, क्लाउड पेन, पेन से एक है, सम और नो का पेयर बन रहा है, आंसर इज बी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही दे रखा है, आइदर और आगे फर्दर लिखा नहीं था, ये ऐसे लिख देता कि यहाँ ये भी होता, तो वो है नहीं, तो चेक ना करें, आंसर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास इसमें क्या दे रखा है, अच्छा आप इन द ईच क्वेश्चन यू हैव टू स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, एजप्शन का कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे है, स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज परफॉर्मेंस इज द रिसेंट बुश एंड एशिया गेम वॉज वेरी पुअर, गवर्नमेंट हैज स्पेंड अ फ्यू करोड्स इन द ट्रेनिंग एंड डिप्यूटिंग अ टीम ऑफ द प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्चा करके उसे बाहर भेजा है पर उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले इंडिया शुड स्टॉप स्पेंडिंग मनी सेंडिंग प्लेयर्स टू दी फ्यूचर एशियन गेम। पहले गलत बोला, हम आगे नहीं भेजेंगे, ऐसा थोड़ी है, अगर तो हार जीत है, खेल है, हार जीत तो होगी ही। अगला है गवर्नमेंट शुड इमीडिएट सेटअप इंक्वायरी कमीशन टू फाइंड आउट द रीजन बाय इंडियन डिमिनिश्ड परफॉर्मेंस। हाँ ये ठीक है कि हमें इंक्वायरी करनी चाहिए कि कारण क्या है, हमारी परफॉर्मेंस डाउन की जाएगी, आप जानी चाहिए थी, ये कारण है, ठीक है ना।
तो आंसर क्या आएगा? ओनली 2 फॉलोअर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्लॉक से लिया गया है। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 9 o'clock in the morning, then how many degree will be in the, अच्छा आपसे पूछा गया है कि 5 बजे तक कितने डिग्री का एंगल आपके पास बनेगा। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो आर हैंड होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? 30 जो है डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 9 से लेके 5, तो 9 से लेके पहले 10, फिर 10 से लेके 11, फिर 11 से लेके 12, 12 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5। टोटल घंटे कितने हो गए? देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 8 घंटे हो गए हैं और हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 8 इंटू 3 कर दो, सीधा 240 आ जाएगा, बात खत्म। ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है सीरीज का। अब यहाँ पे देखते हैं 1, 4 ये सीरीज है। तो अगर यहाँ पे देखता हूँ आपके पास सबसे पहले क्या हुआ है, ऑल्टरनेट सीरीज है। 1 से 4 गए हैं, कितने का गैप है? 3 का। आगे देखते हैं कितने का गैप है? 6 का। आगे देखते हैं कितने का गैप है? 9 का। तो यहाँ पे नंबर आएगा 19। आगे देख लीजिए 4, 5, 6, 7। तो आंसर तो आ ही गया है बी ऑप्शन 19। आंसर तो आ ही गया है बी ऑप्शन। होपफुली बात सारी क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से लिया गया है। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। इनमें से लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है? अच्छा, सेंचुरी का मतलब होता है जिसके साल में 00 आए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक तरीका याद है, 100 ईयर्स में कितने और डे होते हैं? 5। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। आपको याद होगा। तो अगर मैंने 0 का मतलब होता है अपने आप में 7, ठीक है। तो आपको एक तरीका याद होगा, यहाँ पे हम लिखते थे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 पहले 1 है, तो 1 में मंडे तो हो सकता है, ये तो पता चल गया, ठीक है। 2, 3 वेंसडे भी हो सकता है। 4 और 5, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब संडे की अगर बात करता हूँ, 0 ये भी हो सकता है। अब कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये तो होंगे, मंडे भी होगा, वेंसडे भी होगा, फ्राइडे भी होगा, सैटरडे भी होगा, पर कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होगा। सो आंसर इज बी ऑप्शन। अबे आपको ये पता है कि ये लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। डन। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी इस बार का वीकली मॉक टेस्ट नंबर 48। तो चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जी। 2 trains leave the station P at 5:30 and 7 p.m. respectively. They travel with a speed of 48 km and 60 km. यानी 2 ट्रेन हैं जी सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही हैं, और ये ज्यूम कर लेते हैं जी उनका पॉइंट है, एक पॉइंट से ही चली है। फर्स्ट वाली चली है जी 5:30 बजे यानी 5:30, और सेकंड वाली चली है जी एग्जैक्टली 7 बजे सेम पॉइंट से। अब सबसे पहला स्टेप रहेगा जी दोनों ट्रेन्स का मुझे स्टार्टिंग टाइम जो है उसको सेम करना है। तो स्टार्टिंग टाइम सेम करने का मतलब है जी फर्स्ट वाली ट्रेन का एग्जैक्टली 1.5 घंटे का रन रहेगा जी, 3/2 आवर्स का, 3/2 आवर्स का रन रहेगा। अब अगर मैं दोनों ट्रेन के स्पीड की बात करूं तो फर्स्ट वाली है जी 48 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड वन है जी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड है जी 48 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है जी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं फर्स्ट वाली ट्रेन के अकॉर्डिंग चलता हूं जी, तो 48 की स्पीड वाली अगर एग्जैक्टली 1.5 घंटा चलती है, 1.5 घंटे का मतलब है जी 3/2, तो एग्जैक्टली कितना ट्रैवल करेगी जी डिस्टेंस? 24 इंटू 3 विल बी 72। यानी इसका मतलब है जी फर्स्ट वाली ट्रेन जिस टाइम पे चलेगी 5:30 बजे, तो 7 बजे तक वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दैट विल बी 72 किलोमीटर। अब आ जाते हैं जी सेकंड पॉइंट के ऊपर। अगर दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस 72 किलोमीटर है और दोनों ट्रेन्स ने उस डिस्टेंस को कवर करना है, तो रहेगा जी रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमने दोनों की स्पीड्स को माइनस करना है। तो एक की स्पीड 48 है जी, दूसरे की 60 है, यानी रिलेटिव स्पीड जो रहेगी दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है
वो 20 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली ट्रेवल होगा जी, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग कवर होगा जी। तो एग्जैक्टली 6 आवर्स के अंदर सेकेंड ट्रेन जो है वो फर्स्ट वाली ट्रेन को मीट करेगी। तो अगर मैं सेकेंड वाली ट्रेन की बात करूं जी, 60 की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन अगर एग्जैक्टली 6 आवर्स तक चल रही है, एग्जैक्टली 6 आवर्स तक चल रही है जी, तो कितने डिस्टेंस पे जाके मीट करेंगे जी? 360। तो आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी 360। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। रश्मि और पल्लवी कैन मेक अ कार्पेट इन 3 days and 12 days more than the time taken by both of them to work together। यानी दोनों मिलके जितने दिन में काम कंप्लीट करती हैं, रश्मि अकेली उससे 3 दिन ज्यादा लेती है और दूसरी जो पल्लवी है वो अकेली उससे 12 दिन ज्यादा लेती है। यानी इसका मतलब है जी, अगर दोनों पर्सन का यानी रश्मि का, मैं ये मान लेता हूं जी रश्मि का जो टाइम है, रश्मि का और साथ में पल्लवी का, रश्मि और पल्लवी अगर मिलके दोनों x डेज लेती हैं, तो अकेले अगर रश्मि की बात करें तो रश्मि x से 2 डेज ज्यादा लेती है, यानी उसके डेज रहेंगे जी x+2। और अगर मैं पल्लवी की बात करूं तो पल्लवी जो है उससे 12 दिन एक्स्ट्रा ले रही है जी, तो 12 डेज, तो ये रहेगा जी x+12। कितना रहेगा जी? x+12। लास्ट में हमें पूछा गया है जी रश्मि जो है अकेले कितने डेज में काम कंप्लीट कर सकती है। तो अगर आप चेक करो जी, मेरे पास अगर दोनों पर्सन के कंबाइंड डेज से, पहले वाले केस में 2 डेज ज्यादा है, दूसरे वाले केस में 12 डेज ज्यादा है, तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं जी इस केस में। अगर मुझे इनके कॉमनली डेज निकालने हैं, यानी अगर ये मिलके काम करें, तो एक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा तरीका होता है जी, जितने डेज एक्स्ट्रा हैं उन डेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रूट करते हैं। तो मैं सिंपली कह सकता हूं जी 12 डेज ज्यादा है, 2 दिन ज्यादा है, तो ये रहेगा जी आपका 12, सॉरी दिस इज 3 डेज, तो ये रहेगा जी आपका 12 इंटू 3, दैट विल बी 36 डेज। और अगर मैं इसका रूट करूं तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है जी 6 डेज। तो जब भी आपके पास कंबाइंड डेज कैलकुलेट करने हो, दोनों के इंडिविजुअल डेज जो है वो आपके पास गिवन है, कंबाइंड डेज से कुछ डेज एक्स्ट्रा देके, तो वहां आप इसका यूज कर सकते हो जी। लास्ट स्टेप रहेगा जी, उसने मेरे से पूछा है रश्मि जो है वो कितने डेज में काम कंप्लीट कर सकती है, तो रश्मि जो है वो कंबाइंड से 3 दिन ज्यादा लेती है जी। तो एक्स अगर कंबाइंड है तो 3 दिन ज्यादा का मतलब है जी रश्मि अकेली 9 डेज में काम कंप्लीट कर सकती है। तो चलिए जी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। राम टेक्स 10 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क देन रमैया। यानी मेरे पास 2 पर्सन है जी, एक राम है और एक रमैया है। ये मान लेते हैं जी एक आपके पास राम है और एक रमैया है। कह रहा है राम जो है वो 10 डेज ज्यादा लेता है रमैया से, यानी रमैया के अगर मेरे पास x नंबर ऑफ डेज हैं तो राम उससे 10 दिन ज्यादा लेता है। तो चलिए जी, मेरे पास दोनों के डेज आ गए जी, एक के अगर x हैं तो दूसरे के x+10 रहेगा। दे वर्क टुगेदर, देन बाय व्हाट परसेंट शुड रमैया डिक्रीज हिज एफिशिएंसी सो दैट बोथ कंप्लीट द वर्क इन 20 आवर्स। अगर दोनों मिलके 20 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। स्टेटमेंट कह रहे जी रमैया जो है वो कितना परसेंट अपनी एफिशिएंसी को डिक्रीज करे कि दोनों मिलके 20 घंटे में काम कंप्लीट कर सके। तो चलिए जी कंटिन्यू करते हैं जी। एंड बोथ ऑफ देम कंप्लीटेड द वर्क इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी जितना काम जो है वो राम ने किया है उतना ही काम रमैया ने किया है। तो चलिए अगर मैं कहूं जी दोनों मिलके 20 डेज में काम पूरा करना चाहते हैं, मान लेता हूं जी दोनों ने 20 डेज में काम पूरा करना है, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक रमैया है और एक राम है, तो मैं ये मान लेता हूं जी ये आपके पास रमैया है और ये आपके पास राम है। देखो जी अगर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 20 दिनों में या 20 आवर्स में दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट करना है और इक्वली प्रोपोर्शन जो है वो काम का करना है, तो यूनिट्स अगर आवर्स है जी तो मैं आवर्स लेके चल रहा हूं, और इक्वली प्रोपोर्शन काम का करना है, तो इसका मतलब है कंप्लीट काम का आधा काम राम करेगा, कंप्लीट काम का आधा काम रमैया करेगा। तो अगर दोनों मिलके 20 दिन तक काम करेंगे तो इस 20 दिन में राम ने भी आधा काम किया है 20 दिन लगा के, और रमैया ने भी आधा काम किया है 20 डेज लगा। तो उम्मीद है जी आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो रही होगी कि दोनों ने इक्वली प्रोपोर्शन में काम करना है और दोनों ने मिलके 20 डेज में काम कंप्लीट करना है।
तो इसका मतलब राम भी 20 दिन करेगा और रमैया भी 20 दिन करेगा। तो 20 डेज इसके हैं, 20 डेज इसके हैं, हाफ काम करने के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आधा आधा काम कर रहे हैं तो हाफ काम 20 दिन में कंप्लीट होता है। यानी इसका मतलब है अगर हाफ काम 20 दिन में कंप्लीट होता है तो ये दोनों पर्सन कंप्लीट काम करने में एग्जैक्टली 40 दिन लेंगे। दोनों पर्सन कंप्लीट काम करने में एग्जैक्टली 40 डेज लेंगे अगर ये पूरी तरह से काम करते हैं जी, एफिशिएंसी डिक्रीज करने के बाद, जो कि थी जी रमैया की। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। कह रहा है रमैया जो है वो कितना परसेंट अपनी एफिशिएंसी को डिक्रीज करे कि दोनों मिलके 20 घंटे में काम कंप्लीट कर सकें। तो अगर वो रमैया की बात कर रहा है तो मैं राम को रिलेट कर रहा हूं जी। अगर राम के टाइम यहां से इससे 10 घंटे ज्यादा है तो मैं काम करते हैं जी, मैं इस वैल्यू को इक्वेट कर देता हूं राम के डेज से या राम के टाइम से, जो कि 40 घंटे आया है। तो मैं अगर यहां से ये कहूं जी x प्लस 10 को मैं इक्वेट करूं जी 40 आवर्स से, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आती है जी, दैट विल बी 30। यानी अगर राम की एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब है उसके 40 दिन होंगे जी, और इसका मतलब है रमैया के सेम काम करने के जो डेज पहले डिसाइडेड थे वो 30 डेज। अब स्टेटमेंट ये कह रहा है जी कि 30 दिन वाला काम को मुझे कंप्लीट करना है जी 40 दिनों में या 40 आवर्स में। 30 आवर्स का काम जो है मुझे कंप्लीट करना है जी 40 आवर्स में। तो कितनी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेंगे? तो अगर मैं यहां पे डेज का रेशियो बनाऊं तो पहले था जी मेरे पास 30, अब मेरे पास काम करने कंप्लीट करने के हैं 40 आवर्स। तो इसका मतलब आवर्स का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है जी 3 से 4। अगर आवर्स जो है वो 3 से 4 हुए हैं तो डेफिनेटली जो आपकी एफिशिएंसी रहेगी वो इनवर्स होती है जी, यानी 4 से बेसिकली मुझे एफिशिएंसी को 3 करना पड़ेगा। यानी कोई पर्सन अगर 4 यूनिट काम पहले किया करता था तो अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट काम ही कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं कहूं जी 4 से 3 काम हुआ है तो एक एफिशिएंसी गिरी है। किससे गिरी है जी? 4 से। तो मेरा आंसर रहेगा जी 1/4 एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, और यहां पे आंसर रहेगा जी 25%। यानी रमैया अगर अपनी एफिशिएंसी को 25% कम करे तो जो काम वो 30 दिन में पहले करता था अब वो 40 दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं जी इसी के साथ। इन अ टू एंड फ्रो जर्नी, आने और जाने में, स्पीड ऑफ बस जो है वो 20 और 15 किलोमीटर, दो डिफरेंट स्पीड्स हैं जी आने और जाने की, एंड इट टेक्स 14/5 टोटल टाइम, और उसको टोटल जो टाइम लगता है जी वो मेरे को कितना लगता है जी? 14/5 आवर्स जो आने में और जाने में लगा है। हमें बताना है जी टोटल डिस्टेंस आने और जाने का कितना रहेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। हमारे पास अगर स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पहली प्रायोरिटी रहेगी जी स्पीड से स्पीड का रेशियो बनाओ जी। 20 और 15, 20 और 15 का मतलब है जी 5, 4 जा 20, 3 जा 15। यानी अगर मेरे पास स्पीड जो है वो 4 और 3 का रेशियो है तो डेफिनेटली जो टाइम रहेगा वो 3 और 4 का रेशियो रहेगा। अब यहां से अगर आने और जाने दोनों का टाइम गिवन है जी 14/5, तो मैं कंबाइंड टाइम से इक्वेट कर देता हूं जी। यानी हिस्सों में 3 और 4 7 हिस्से, 7 हिस्से 14/5 होता है तो एक हिस्सा 2/5 होगा, यानी कि 3 हिस्से का मतलब रहेगा जी 6/5 आवर्स। यानी मैंने मल्टीप्लाई किया है जी एक हिस्से की वैल्यू को, जो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी जी 2/5। तो चलिए जी लास्ट में डिस्टेंस निकाल लेते हैं जी। 20 की स्पीड से अगर मैं चलता हूं तो किसी जगह पहुंचता हूं 6/5 घंटे में, तो डिस्टेंस का मतलब है जी 20 की स्पीड है, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 6/5 आवर्स से, तो आपका डिस्टेंस रहेगा जी 5 4 20, यानी 24। अब ये डिस्टेंस जो है वो वन साइड का है, तो आने का भी 24 और जाने का भी 24, तो डेफिनेटली आंसर जो रहेगा दैट विल बी 48 किलोमीटर्स जो आपका डिस्टेंस रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया गया है। सर्टेन सम ऑफ मनी 10M इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 130M। इसका मतलब है कोई चीज जो है वो बेसिकली 10 से 13 हुई है, 10 से 130 हुई है, सॉरी, यानी 1 से 13 हुई, सॉरी, और टाइम लगा है जी उसको 30 साल। अब चाहे मैं इसको 10 से 13 कहूं, चाहे मैं इसको 1 से 13 कहूं, बात तो वही है जी। 10 से 130, 1 से 13, बात सेम ही है जी। तो अगर मैं कहूं जी 1 से कोई चीज 13 हुई है तो यहां पे आप इंक्रीज देख सकते हो जी। इंटरेस्ट जो है वो 12 हिस्से का है, तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं जी 30 साल में, तो मैं ये कह सकता हूं जी 12% जो है इंटरेस्ट है 30 सालों में, तो ये इंटू 100 से, ये आपके पास यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है जी।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके पास आ रहा है जी, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है जी, 3 4 12, यानी इस कंडीशन में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है जी, दैट विल बी 40%। अब लास्ट में आपसे पूछा गया है जी कि अगर उसी इंटरेस्ट को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखता हूं तो वो कितना बनेगा 2 साल बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 40% के अकॉर्डिंग मुझे 2 साल का सीआई कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी, मान लेता हूं जी मेरा प्रिंसिपल 1 है, 1 का 40% निकालोगे तो 0.40 आएगा जी। पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 0.40 होगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट 0.40 और इसका भी 0.40, यानी 40% का मतलब है जी 0.16 होगा। तो अगर आप यहां से सीआई कैलकुलेट करो, अगर आप यहां से सीआई कैलकुलेट करो तो आता है जी 0.96, 0.96। तो इसका मतलब है जी एक जो है वो 0.96 इंटरेस्ट लेगा, तो 1.96 जो है वो आपका आंसर है। मैंने 1 से शुरू किया था तो दैट मींस 19.6, अगर आप 10 गुना करते हो, क्योंकि रेशो 10 से 13 थी, तो 10 से 9.6 का इंक्रीज होगा जी, तो मेरा पास आंसर रहेगा जी 19.6 का। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। द इनकम ऑफ अरुण एंड वरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। देखो जी, अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स का कोई रेशियो गिवन नहीं है, सेविंग्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अगर आप इक्वेशन भी बनाते हो तो इक्वेशन ये बन रहा है जी बेसिकली कि अगर मैं कहूं जी 5 कमाने वाला अगर 3 खर्चे और दूसरा पर्सन 7 कमाने वाला अगर 4 खर्चे, तो ये इक्वेट किससे रहेगा, क्योंकि आपके पास एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे जी। तो यहां से एक इक्वेशन बन पा रही है, दो वेरिएबल्स हैं, मिसिंग टर्म है, तो ये इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता जी, नॉट पॉसिबल है जी, कांट बी डिटरमाइन है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एक मैन है जी 150 चेयर्स परचेज की हैं जिनका कॉस्टिंग जो है सभी का सेम है, बट उसमें से 40% चेयर्स जो है वो आपकी खराब हो गई हैं जी, डैमेज हैं, जिनको बेचा नहीं जा सकता। यानी अगर मैं बची 60% को बेचता हूं, 50% उसमें से 20% प्रॉफिट देके गई है, रिमेनिंग जो है वो 5% लॉस देके गई है। अगर टोटल सेलिंग जो है वो 7740 है, तो ये बताना जी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो था वो चेयर्स का कितना था। वेरी गुड, बहुत बड़े क्वेश्चन है जी, एक बार चेक करते हैं जी सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं टोटल 150 चेयर्स हैं, तो 150 चेयर्स में से 40% जो है वो डैमेज है, यानी 150 में से 60% जो है वो आप बेच सकती हो। तो अगर मैं 15 का 60 गुना निकालू जी, तो ये आता है जी 90 चेयर्स जो है वो आपने सेल की हैं। अब 90 चेयर्स में से 50% चेयर्स जो हैं वो 20% प्रॉफिट देके गई है जी। मैं ये मान लेता हूं जी एक चेयर 1 रुपए की, 1 यूनिट की है, तो 90 चेयर्स जो है वो 90 यूनिट्स की 90 रुपए की रहेंगी। अब 90 में से अगर 45 यानी हाफ चेयर्स जो है, यानी 45 चेयर्स जो है वो बिकी है जी आपकी 20% प्रॉफिट। तो 45 का अगर आप 20% कैलकुलेट करो तो 9 आता है जी, यानी 45 रुपए वाला आर्टिकल अगर 9 रुपए बढ़ के बिकता है तो वो बिकता है जी 54 रुपए। और अगर 50% जो है वो आपके 20% प्रॉफिट देके गई हैं, तो बची 50% यानी बची 45 चेयर्स जो हैं वो 5% लॉस पे गई हैं, 5% लॉस पे गई हैं। तो इसका मतलब है जी 2.25 रुपीज का लॉस रहेगा, 2.25 का लॉस रहेगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है जी आपके पास 42.75। चलिए एक बार चेक करो जी, पॉइंट आपको क्लियर है कि अगर मैं उसमें से कहूं जी 45 चेयर्स जो है वो 9 रुपए बढ़ के बिकी हैं जी, और बची 45 चेयर्स जो है वो 2.25 रुपए कम करके बिकी है, लॉस करके बिकी है। तो यहां से ये देख लेते हैं जी टोटल सेलिंग जो है वो बेसिकली कितना है, तो 5 और 4 9, यानी ये आ रहा है जी 96.75, ये आ रहा है जी आपका 96.75। और लास्ट में उसने मुझे दिया है जी 7,740 जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस है जी। हमें फाइंड आउट करना है जी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट प्राइस जो है वो बेसिकली कितना था। तो यहां से अगर आप इसको इक्वेट करते हो जी, तो मेरे पास 96.75 की वैल्यू जो है वो आई है, जो कि 7740 है। तो यहां से आप बेसिकली 150 यूनिट्स की वैल्यू निकालोगे, वो मेरे पास उसका कॉस्ट रहेगा जो आर्टिकल मैंने 150 चेयर्स खरीदी थी। तो लास्ट स्टेप मेरा रहेगा जी 7740, इसको डिवाइड करना है जी आपको 96.75,
एक के लिए, और लास्ट में मुझे निकालना है जी 150, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो जी। अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है वो आपका 12,000 आएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना जी एक बार। In a coaching, there are 3 batches, namely Lolos, Momos, and Jojos. Out of the total student in the coaching, there were 25%, 35%, and 40% students in these batches. If 2, 4, or 5% students are respectively passes, then what percent of the students failed? हमें failed students का percentage निकालना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। मान लेते हैं जी, मैं ये ज्यूम कर लेता हूं कि 25% का, ये मान लेते हैं जी 250 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे वाले केस में 350 स्टूडेंट्स हैं, और लास्ट वाले केस में 40 यानी 400 स्टूडेंट्स हैं। अब 250 स्टूडेंट्स में से जो पास हुए हैं बेसिकली वो हुए हैं जी 2%, यानी इसका अगर आप 2% निकालो तो आता है जी 5 रुपए। 5%, 4% रहेगा जी आपका दूसरे का, इसका अगर आप 2%, 1% देखो जी 3.5 है, 2% देखो 7 है, 4% देखें तो 14 है, यानी 14 जो है वो बच्चे पास हुए हैं। तो फेल्ड स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है जी, माइनस करके निकाल लेंगे। और लास्ट रहेगा जी 400 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 5% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। तो 5% का मतलब है जी 20 जो है वो पास हुए होंगे। तो अगर आप यहां से इनका टोटल देखो जी कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट वाले केस में है जी 245, सेकेंड वाले केस में है जी 336, और लास्ट वाले केस में है जी 380। तो आप इनको अगर टोटल चेक करो जी तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। यहां से अगर टोटल स्टूडेंट्स पहले की बात करें, चलिए जी पहले तो जोड़ लेते हैं जी, 6 और 5 11, 8 9 10 11, 11 और 1 12 और 4 6, और लास्ट रहेगा जी 3 और 3 6 7 8 9, यानी 961% ऐसे हैं जी जो आपके फेल हुए हैं। कितने में से जी वो देख लेते हैं जी। टोटल स्टूडेंट अगर आप चेक करो जी, 3 और 2 5, 600 और 400 1000, यानी 961 पर 1000 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं जी इन 200, यानी अगर आप सिंप्लीफाई करो जी 96.1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। रोनी फुटबॉल कैरियर स्कोर्ड 12 गोल्स ऑन द एवरेज ऑफ 10 मैचेस। रोनी ने 12 गोल जो है वो किए हैं 10 मैचेस एवरेज के अंदर। चलिए जी करते हैं जी। चलिए जी 12 गोल्स वो करता है जी और उसने 10 मैचेस खेले हैं, तो इसका मतलब है जी 120 गोल्स हो गए जी फर्स्ट केस में। इफ ही स्कोर्ड 11 गोल्स ऑन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मैच, 11 गोल्स करे हैं जी पहले 4 मैच में, यानी ये हो गई जी 44, एंड 13 गोल किए हैं जी लास्ट 4 में, 13 गोल किए हैं लास्ट 4 में, तो ये आ गई जी आपका 52। चलिए जी देन फाइंड द एवरेज गोल स्कोर बाय हिम इन द रिमेनिंग 2। ठीक है जी, तो यहां से अगर आप चेक करो जी 4 और 5, 96 गोल्स जो है वो कर चुका है आउट ऑफ 120, यानी अभी और कितने करने हैं जी 24 गोल्स करने हैं। तो अगर वो 2 मैचेस के हैं जी तो मेरा आंसर रहेगा जी 12 गोल्स पर मैच वो करेगा जी। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट 10,9760 यानी 1,97,9,760 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 12 ईयर्स। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, मान लेते हैं जी 100 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल थे, अगर मुझे हर साल का 8% के हिसाब से 12 साल का ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट रहेगा जी 8% के हिसाब से 12, तो ये आएगा जी 12 इंटू 8 96, यानी इस अकॉर्डिंग अमाउंट जो बनती है जी वो बनती है 196। अब उसने मुझे दिया है जी अ सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज इतना, तो अमाउंट्स है तो अमाउंट से इक्वेट कर लेते हैं जी 109760, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है जी 109760। तो चलिए जी अगर आप यहां से एक की वैल्यू निकालते हो तो ये रहेगा जी डिवाइड बाय 196, तो यहां से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो जी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 57,000 समथिंग आ रहा है 56,000। लास्ट में उसने कहा है कि जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका 3 साल का मुझे
ब्याज फाइंड आउट करना है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो लास्ट स्टेप रहेगा जी, इसको मुझे 3 टाइम्स जो है 8% इंक्रीज करना है। तो मैं लास्ट स्टेप में कह सकता हूं जी, इनटू रहेगा जी आपका 108/100, ये रहेगा जी 108/100 और ये रहेगा जी 108, यानी मुझे बेसिकली इसको 3 बार जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां से आपने इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है जी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जी, आप इसको ट्राई करना। और ये बनेगी जी आपके पास अमाउंट। फिर लास्ट स्टेप में आपको इसमें से जो प्रिंसिपल आया था, प्रिंसिपल चेक करना जी, 56,000 आया होगा, उसको हमने इसमें से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है जी सीआई। तो आप इसको सॉल्व कर लेना जी, आपके पास आंसर रहेगा 14,543.872। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था जी क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। द रेशियो ऑफ अशोक टू भानुज अर्निंग 4:9। भानु की अर्निंग इंक्रीज हुई है जी 45%। देन हिज टोटल, हिज का मतलब है जी वो भानु की बात कर रहा है, देन हिज टोटल अर्निंग विल बिकम्स 33,930। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ अशोक? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी, अगर इसकी अशोक की अर्निंग 4 है तो भानु की अर्निंग जो है वो आपकी 9 होगी। मैं एक काम करता हूं जी, दोनों वैल्यूज को 10 टाइम्स कर लेता हूं, आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। ये मान लेते हैं जी इसकी 40 है और इसकी 90 है। अब मुझे बढ़ाना है जी 45%, किसकी इनकम को जी? अर्निंग्स को जी, भानु की अर्निंग्स को। भानु की अर्निंग को बढ़ाते हैं जी 45%। तो ये जो 45% रहेगा, ये रहेगा जी आपका 90 का। ये रहेगा जी किसका? आपका, ये रहेगा जी आपका 90 का। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनता है जी 40.5, यानी अगर इसकी अर्निंग्स पहले 90 थी तो अब 40.5 बढ़ेगी, यानी ये हो जाएगा जी 130.5। अब उसने मुझे ये दिया है जी, अब उसकी अर्निंग जो है वो 33,930 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है जी 33,930। चलिए एक बार चेक करना जी, यहां पे हिज की जो बात थी, हिज का मतलब है जी वो बेसिकली भानु की बात कर रहा है, वो बेसिकली भानु की बात कर रहा है। तो चलिए जी, यहां से अगर आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हो जी, तो ये निकल के आएगा जी आपके पास 260 रुपए। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो जी इसको, एक हिस्सा यहां से 260 आ रहा है, लास्ट में उसने अशोक की अर्निंग्स पूछी है जी, तो मेरा आंसर रहेगा जी 40 इंटू 260, ये आपके पास आंसर रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो जी, तो ये आपके पास निकल के आता है जी 10400, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये थे जी इस बार के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो मिलते रहेंगे जी, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। Hello students, I hope you're doing well. So let's discuss the weekly mock for the test. Okay, let's discuss the first question. Each consecutive underlined section corresponds with an answer choice. Select the choice that has an error or select choice D for no error, right? तो errors निकालने थे basically आपको यहाँ पे। चलिए जी, errors देखते हैं क्या क्या errors हैं यहाँ पे। My friend told me that he will visit me yesterday, but he did not come. तो अगर हम इसका सेंटेंस बना के देखें तो ये बनता है, मेरे दोस्त ने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा बट वो नहीं आया। देखिए यहाँ पे करेक्शन होने वाली है, yesterday की जगह today आ जाएगा। tomorrow क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने बोल दिया कि वो आया ही नहीं, इसीलिए today आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The members casted their votes in favor of Mr. Sharma. तो यहाँ पे जब भी आप किसी को वोट डालते हैं तो हमेशा आप क्या बोलते हैं? वोटेड बोलते हैं। कास्टेड द वोट का मतलब गलत होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? वोटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 children participated in the competition and each of them was given a prize. अब देखिए यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है और ये ईच लिखा है। ईच हमेशा ही दो लोगों के लिए यूज होता है। जब दो से ज्यादा हो जाए तो या तो एवरी की कोई फॉर्म लग जाती है या फिर ऑल लग जाती है, लेकिन यहाँ ऑल क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा है, तो एंड ऑल ऑफ देम वर होना चाहिए था, है ना? तो दो में तो करेक्शन नहीं आएगी, इसीलिए एंड एवरी वन ऑफ देम वॉज गिवन अ प्राइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
The members of the society discussed about the arrangements for the election. इसमें देखिए बोलता है डिस्कस्ड अबाउट, ये एक सुपरफ्लुअस सेंटेंस है, तो हमेशा ही कभी जब डिस्कशन की बात हो रही हो, डिस्कस्ड की बात हो रही हो, तो उसके साथ अबाउट नहीं आता, हमेशा डिस्कस्ड ही आता है, तो डिस्कस द अरेंजमेंट्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका करेक्शन है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी, बोलता है उसको चाय पसंद है कॉफी की बजाय, तो जब हम ऐसे बात करते हैं इसकी बजाय वो, तो हम हमेशा ही टू यूज करते हैं, तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक, फ्रॉम म्यूजिक नहीं, बिहाइंड म्यूजिक नहीं, टू म्यूजिक नहीं, हम क्या बोलते हैं, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है या मैं गानों का दीवाना हूं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आपको नियरेस्ट मीनिंग देखना था, है ना, सेंटेंस का, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो डिसऑनरेबल को डाकन किया हुआ था, तो वहां पे डिसऑनरेबल का सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है, तो यहाँ होना था डिस्क्रेडिटेबल, इसका मतलब है कि गलत तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से पैसे कमाए गए, सो वेल्थ अक्वायर्ड थ्रू डिस्क्रेडिटेबल मीन्स लीड टू मॉरल डाउनफॉल। ओके, नेक्स्ट, what meaning have you drawn from her tongue in a cheek, again nearest in the meaning, पहले तो ये देखिए tongue in a cheek, idioms and phrases, idiom आ गया, तो tongue in a cheek का मतलब है जैसे किसी का मजाक उड़ाना, आयरनी, ऑलराइट, तो बोलता है यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में इसको डाकन किया होता ड्रॉन, बोलता है क्या मतलब निकाला तुमने उसकी इस बात का, तो मतलब का होता है डिड्यूस्ड, व्हाट डिड यू डिड्यूस्ड, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना था, वन वर्ड देखना था पूरी स्टेटमेंट के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंट्रीटीज, कि एक इंसान जो अपने डिसीजन पे फर्म है और उसको कोई भी बात बदल नहीं सकती उसके डिसीजन को, उसको क्या बोलते हैं, इनएक्सरेबल, इनएक्सरेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, ये तो बहुत ही आसान सा था, है ना, कि आपके ऑफिस और इंस्टीट्यूशन में जो आपके साथ काम करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, कलीग, है ना, सॉरी, इंडिजेंस, अब इंडिजेंस का मतलब होता है गरीबी, ऑलराइट, तो गरीबी, लेजी, रिचेस, इंडिजिनस, मतलब पॉवर्टी होना था इसका आंसर। ठीक है, देखिए, If I met Harish, I will tell him about your plans. अब यहाँ देखना था कि सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा बन रहा है, देखिए ये क्या है, met, बोलता है पास्ट की फॉर्म है और ये तो फ्यूचर की फॉर्म है ना, लेकिन फ्यूचर भी कैसा, बोलता है विल का वुड हो सकता है यहाँ पे, है ना, तो बोलता है जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होना था बी। हैव टोल्ड क्यों नहीं हो सकता, बोला अगर मैं हरीश को मिलूंगा तो मैंने उसको बता दिया होगा, बता दिया तो होगा ही नहीं, या बता चुका था, है ना, इसीलिए क्या होगा, इफ आई मेट हरीश आई वुड टेल हिम अबाउट योर प्लान्स। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।